Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we have completed our 3 chapters, right? So let's begin chapter number 4. Solids, liquids and gases. Today is our introduction chapter, right? In introduction of chapter, what I am going to introduce you? I am going to introduce you new vocabulary words of these chapters and meanings of these chapter. Okay, so let's begin that. Number 1, matter. M-A-T-T-E-R, matter. M-A-T-T-E-R, matter. M-A-T-T-E-R, matter. Number 2, solid. S-O-L-I-D, solid. S-O-L-I-D, solid. S-O-L-I-D, solid. Number 3, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. Number 4, gases. G-A-S-E-S, gases. G-A-S-E-S, gases. Number 5, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. Number 6, definite. D-I-F-I-N-I-T-E, definite. D-E-F-I-N-I-T-E, definite. D-E-F-I-N-I-T-E, definite. Number 7, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. Number 8, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. Number 9, melt. M-E-L-T, melt. M-E-L-T, melt. M-E-L-T, melt. Number 10, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. Number 11, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. Number 12, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. Number 13, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. Number 14, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. Number 15, poured. P-O-U-R-E-D, poured. P-O-U-R-E-D, poured. P-O-U-R-E-D, poured.
Let's once again read these all the vocabulary words and pronunciate it with spellings. Number 1, matter. M-A-T-T-E-R, matter. M-A-T-T-E-R, matter. Number 2, solid. S-O-L-I-D, solid. S-O-L-I-D, solid. Number 3, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. Number 4, gases. G-A-S-E-S, gases. G-A-S-E-S, gases. Number 5, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. Number 6, definite. D-E-F-I-N-I-T-E, definite. D-E-F-I-N-I-T-E, definite. Number 7, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. S-O-L-U-T-I-O-N, solution. Number 8, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. Number 9, melt. M-E-L-T, melt. M-E-L-T, melt. Number 10, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. S-O-L-V-E-N-T, solvent. Number 11, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. V-A-P-O-U-R, vapor. Number 12, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. Number 13, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. P-A-R-T-I-C-L-E-S, particles. Number 14, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. O-C-C-U-P-Y, occupy. Number 15, port. P-O-U-R-E-D, port. Kids, let's only pronunciate, okay? Number 1, matter. Number 2, solid. Number 3, liquid. Number 4, gases. Number 5, substance. Number 6, definite. Number 7, solution. Number 8, dissolve. Number 9, melt. Number 10, solvent. Number 11, vapor. Number 12, container. Number 13, particles. Number 14, occupy. Number 15, port. So here we completed our vocabulary words. Now let's begin our meanings. Meanings are too much important because with the help of meanings we will getting to know all the meanings regarding these chapter, right? So it is easy to understand these chapter. So please be careful and listen very nicely. Number 1, vapor. A mass of very small parts of liquid in the air. वेपर मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, एज अ मॉइस्चर की तरह जो प्रेजेंट होते हैं ना. और मास मतलब बहुत सारा, ये बहुत सारे जो वाटर पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर. क्या बोलेंगे? वेपर. फॉर एग्जाम्पल स्टीम. स्टीम में से जो वो भाप निकलती है ना, वेपर निकलता है ना जो,
तो वो तो बहुत सारा होता है, 3-4 वाटर ड्रॉपलेट्स तो होते नहीं है, वो कितने होते हैं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेपर। किड्स, इन लास्ट ग्रेड आई एक्सप्लेन्ड यू वाटर साइकिल। मैंने आपको वाटर साइकिल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, राइट, जो आप लोग बोर्ड में आके ड्रॉ भी कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से, दीदी से भी बेटर ड्रॉ कर रहे थे आप लोग वाटर साइकिल। तो आपको याद है ना वाटर साइकिल कि पानी होता है, उसमें सन्स रेज आते हैं, पानी गर्म होता है, उसमें से स्टीम निकलती है, स्टीम में से ऊपर क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म होने के बाद कौन सा होता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेन आती है, राइट। तो ये एक वाटर साइकिल थी, उसमें जो ये सेकेंड पार्ट था ना कि जिसमें से वेपर निकल रहा है, तो वो थोड़ा तो होता ही नहीं, वो बहुत सारा होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो मास में होते हैं ना, स्टीम, ये सब कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे, वेपर। A mass of very small parts of liquid in the air is called vapor, or for example we can say that steam, right? I hope so you understand what is the meaning of vapor. So now number 2, solute. Solute मतलब a dissolved matter, मतलब कोई भी चीज़ हम पानी में, कोई भी चीज़, कोई भी वाटर सब्सटेंस में, लिक्विड सब्सटेंस में हम कुछ भी ऐड करते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। आई हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू। जैसे वाटर में हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो वो पानी में वो डिज़ोल्व हो जाता है, राइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। फिर वाटर है, वाटर, राइट, वी आर एडिंग शुगर इन वाटर ऑल्सो, राइट, तो वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है वाटर में, तो वो क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूट। फिर लेमन भी ऐड हो सकता है, कोई भी चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। नाउ नंबर 3, सॉल्वेंट। A substance, especially a liquid that can dissolve another substance. Solvent का मतलब है कोई भी लिक्विड होता है जो पानी में जो हमने सॉल्यूट डाला, राइट, तो जो पानी है, पानी उसमें सॉल्यूट डाला तो वो डिज़ोल्व हुआ, राइट, तो पानी क्या हुआ, पानी हमारा सॉल्वेंट हुआ। क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट हुआ। मतलब अ सब्सटेंस स्पेशली अ लिक्विड दैट कैन डिज़ोल्व अनदर सब्सटेंस, कोई भी अनदर सब्सटेंस, पानी है लिक्विड फॉर्म में कुछ भी है, वो उसमें हमने कुछ भी डाल दिया, सपोज मिल्क है, मिल्क, राइट, हमने उसमें शुगर डाली तो मिल्क को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कोई भी लिक्विड जो सॉल्यूट को उसमें डिज़ोल्व कर रहा है, तो वो जो लिक्विड है, कोई भी मिल्क है, वाटर है, कोई भी जूस है, तो वो क्या हुआ, तो वो सॉल्वेंट हुआ। क्या हुआ, सॉल्वेंट। नंबर 4, सॉल्यूशन। अ लिक्विड इन विच समथिंग इज डिज़ोल्व। कोई भी टाइप का लिक्विड हो जिसमें डिज़ोल्व हो चुका है, ये सपोज हमने पानी में डाला तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और हमने जो डाला कोई भी मैटर डिज़ोल्व करने वाला, वो क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ। तो ये दोनों को मिक्स होके क्या बना हमारा, सॉल्यूशन। क्या बना हमारा, सॉल्यूशन। मतलब अ लिक्विड इन विच समथिंग इज डिज़ोल्व्ड, कि हाँ कोई भी चीज़ डिज़ोल्व लिक्विड में हो गई है तो वो क्या बना हमारा, सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन। नाउ नंबर 5, पोर। To make a liquid or other substance flow steadily out of or into a container. Pour मतलब कोई भी कंटेनर, कोई भी हमारा वेसल हो, कोई भी ग्लास, कोई भी बॉटल, कोई भी पतीला, कुछ भी हो, हमें किसी में से किसी वाटर में स्टेडीली उसको मतलब गिराए बिना एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना, मतलब पोर करना। To make a liquid or other substance flow steadily out of or into a container. हम पानी की बॉटल्स जो होती है वो कहाँ से भरते हैं, मतलब वो जो हमारा जग होता है या तो फिर
किसी भी चीज़ में से ग्लास में लेकर उसमें हम ऐड करते हैं, राइट। तो धीरे धीरे वो ऐड करते हैं, मतलब पोर करना। कोई भी चीज़ में से कोई भी मिल्क लेते हैं हम, कोई भी कंटेनर में से ग्लास में लेते हैं, तो मतलब पोर करना। So I hope so kids you understand all the meanings of this chapter. Once again I am repeating all these meanings. Number 1, vapor, a mass of very small parts of liquid in the air. For example steam, मतलब जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, मास मतलब बहुत सारा राइट। वो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर। नंबर 2, सॉल्यूट, मतलब कोई भी चीज़ किसी में डिसॉल्व करनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। नंबर 3, सॉल्वेंट, a substance especially liquid that can dissolve another substance। कोई भी लिक्विड होता है उसमें हम कुछ भी डिसॉल्व करने वाले होते हैं, तो वो लिक्विड क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। नंबर 4, सॉल्यूशन, a liquid in which something is dissolved। कोई भी लिक्विड है, हमने उसमें कुछ भी डिसॉल्व ऑलरेडी कर दिया है, तो लिक्विड है और उसमें डिसॉल्व भी हो गया है, तो वो फॉर्म किस में होगा? उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। नंबर 5, pour, to make a liquid or other substance flow steadily out or into a container। मतलब कोई भी चीज़ को एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर या तो फिर कोई भी दूसरी थिंग्स में हमें उसको शिफ्ट कर लेना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? pour। Once again I am only reading these meanings. Try to listen and try to hear pronunciation of these meanings, and directly मैं रीड करूँ तो आपके दिमाग में उसका मीनिंग ही आना चाहिए। ओके। नंबर 1, vapor, a mass of very small parts of liquid in the air. Number 2, solute, a dissolved matter. Number 3, solvent, a substance especially a liquid that can dissolve another substance. Number 4, solution, a liquid in which something is dissolved. Number 5, pour, to make a liquid or other substance flow steadily out of or into a container. So kids, in this session what I explained you, what I introduced you, I introduce you vocabulary words and meanings of this chapter, right? ये आपको इसलिए करने हैं अच्छी तरह से, from this you can improve your reading, your pronunciation, meanings of this chapter, so you will get more knowledge about this chapter। तो ये सेशन में ये सब कुछ कराने से ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ये इम्प्रूव होती है, स्पेशली रीडिंग और आपके वर्ड्स, मतलब ये आपको स्पेलिंग्स भी आ जाते हैं इजीली। इसीलिए दीदी ये बार बार रिवाइज आपको करवाती है, तो आपको चैप्टर इजी रहेगा समझने में और आप यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, सो वंस अगेन लेट्स रिपीट दिस वोकेबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स। Number 1, matter, M-A-T-T-E-R, matter. Number 2, solid, S-O-L-I-D, solid. Number 3, liquid, L-I-Q-U-I-D। I hope so kids मेरे साथ साथ बोल रहे हो ना, फटाफट से चलो। Number 5, gases, G-A-S-E-S, gases. Number 5, substance, S-U-B-S-T-A-N-C-E, substance. Number 6, definite, D-E-F-I-N-I-T-E, definite. Number 7, solution, S-O-L-U-T-I-O-N, solution. Number 8, dissolve, D-I-S-S-O-L-V-E, dissolve. Number 9, melt, M-E-L-T, melt. Number 10, solvent, S-O-L-V-E-N-T, solvent. Number 11, vapor, V-A-P-O-U-R, vapor. Number 12, container,
container, container. Number 13, particles, particles, particles. Number 14, occupy, occupy, occupy. Number 15, poured, poured, poured. Now meanings. Vapor, a mass of very small parts of liquid in the air. लिक्विड में जो स्टीम मतलब बहुत सारे होते हैं मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहता है एयर में, हम उसको क्या बोलेंगे? वेपर. नंबर 2, सॉल्यूट मतलब अ डिजॉल्व्ड मैटर, कोई भी मैटर हो जो पानी में डिजॉल्व करना है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. नंबर 3, सॉल्वेंट, a substance, especially a liquid that can dissolve another substance. कोई भी लिक्विड होता है जिसमें हम कोई भी अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने वाले होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. नंबर 4, सॉल्यूशन, अ लिक्विड इन विच समथिंग इज डिसॉल्व्ड, कोई भी लिक्विड जिसमें हमने कुछ भी डिसॉल्व कर दिया है तो वो क्या बना हमारा? सॉल्यूशन. Number 5, pour, to make a liquid or other substance flow steadily out of or into a container, कोई भी चीज़ को एक में से दूसरे कंटेनर में निकालना, steadily उसको कोई भी मूव किए बिना, उसको हम क्या बोलेंगे? pour करना. So kids, here I am sharing a PDF with this session, right? PDF भेज रही हूँ इसी सेशन के साथ. आपको क्या करना है? दीदी ने जैसे CW बनाई है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको CW इसी चैप्टर की बनानी है. थर्ड चैप्टर आई होप सो यू कंप्लीटेड इन योर CW. थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट न्यू पेज से आपको ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देना है. बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना है. दीदी डजंट लाइक बैड हैंड राइटिंग, सो प्लीज़ ट्राई टू राइट इट विथ गुड हैंड राइटिंग. ओके, आप अच्छे राइटिंग से लिखने की ट्राई करोगे तो दीदी जब स्कूल रीओपन होगी तो आपकी बुक चेकिंग के लिए आएगी तो एक्सीलेंट भी मिलेगा किड्स आपको. सो वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स आपको CW में ट्रांसफ़र करने हैं अच्छे राइटिंग में, तो प्लीज़ कंप्लीट इट. सो किड्स, till next session, bye.